Hello, students. A very good morning to all of you. Today, in this video, I am going to explain the chapter Diversity in Living Organism. In this video, I am going to explain the plant kingdom. That is a huge living organism. Also, that is plant kingdom, and also we have to study about in this chapter in a brief manner. Okay, students. So, plant kingdom is classified among depend on the whether plant body has well differentiated distinct component. The next level of classification is based on whether the differentiate plant body has spatial tissue for the transport of water and other substance within it. Further classified looked as the ability to bear seed and whether the seed are enclosed within the food. So, students, you see here the flow chart of the plant kingdom. Firstly, plant kingdom is by divided into two parts, that is the cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy, that is these two plant kingdom is classified on the basis of the seed bearing. Cryptogamy, that means these plants of the group that cannot bear the seed, and the phanerogamy is care the flowering plants and bear the seeds. Okay, students. Cryptogamy is also divided into the three types, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. And phanerogamy is also divided into two parts, that is gymnosperm and angiosperm, that is the seed. Seed are naked or covered with the fruit. Okay. Thallophyta is also the two type, that is algae and fungi. So, and angiosperm is also in the two type, that is monocot and dicot. So this is the flow chart of the plant kingdom. This classification makes the easier the plant kingdom studied about the plant kingdom. यह फ्लो चार्ट जो है वह हमें प्लांट किंगडम के को स्टडी करने में पूरी तरीके से क्या करेगा, हेल्प करेगा. अब हम इसके वन बाय वन एक एक पार्ट्स को ब्रीफली स्टडी करेंगे विद द एग्जांपल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द थैलोफाइटा. Thallophyta is belonging to the class cryptogamy. Okay, cryptogamy, that is not the bear the seed. ये क्या है, ये जो क्रिप्टोगैमी है ये सीड बेयर नहीं करते हैं, जबकि जो फेनरोगैमी है ये इस क्लास के सारे प्लांट्स जो होंगे वो सीड बेयर करेंगे. और सीड किस प्रकार के होंगे, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, मतलब सीड विद द नेकेड. नेकेड मतलब कि कोई कवरिंग नहीं, एंड सीड विद द कवर्ड फ्रूट, मतलब सीड के ऊपर फ्रूट की क्या होगी, कवरिंग होगी. सो आई हैव टू एक्सप्लेन all this term, that is Thallophyta, Biophyta, Pteridophyta, gymnosperm, angiosperm, dicot, monocot, algae and fungi. Okay, so firstly we have to study the Thallophyta. Okay student, थैलोफाइटा के सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, फर्स्टली द बॉडी डिफ्रेंशिएशन. ओके, बॉडी किस प्रकार की है, द स्टेम एब्सेंट, रूट एब्सेंट एंड लीफ एब्सेंट, मतलब इसके कोई भी बॉडी पार्ट फर्स्टली डिफ्रेंशिएट नहीं होता, क्योंकि इसका नाम क्या है, थैलोफाइटा. थैलोफाइटा मतलब ये इसका स्ट्रक्चर जो है एक थैलस नुमा होता है. इसमें कहीं भी, ये आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, दैट इज स्पाइरोगायरा, and then sorry, that is the Spirogyra and that is the Eulothrix. These both, कहीं भी इसमें आपको इसके बॉडी के पार्ट्स डिवाइडेड नहीं दिखेंगे. सो इन द थैलोफाइटा द स्टेम एब्सेंट, रूट एब्सेंट एंड लीव्स एब्सेंट, मतलब बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, बॉडी के पार्ट डिफरेंशिएट नहीं होते हैं. ओनली अ सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द थैलस. एक थैलस नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, थैलस. इसमें कोई वस्कुलर बंडल नहीं होता है, क्योंकि वस्कुलर बंडल का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स एंड वाटर. तो वस्कुलर बंडल भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें लीव्स और रूट्स क्या है, स्टेम्स क्या है, एब्सेंट है. दे आर मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होते हैं. दिस डिवीजन इंक्लूड द थ्री सब डिवीजन एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन. ओके, इस डिवीजन को ऑलरेडी थ्री पार्ट्स में, थ्री सब डिवीजन इसके होते हैं, दैट इज एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन. ठीक, एल्गी, फंगस एंड लाइकेन. जब एल्गी और फंगस दोनों एक साथ मिल करके रहते हैं तो क्या बनाते हैं, लाइकेन का फॉर्मेशन कहते हैं, जिसको कि हम
क्या लाइकेन के रूप में रहते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस थ्री डिवीजन, एल्गी भी एक प्लांट है जो कि अपना फोटोसिंथेसिस करता है। फंजाई जो है जो कि एक फंगस है जो ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। एंड लाइकेन जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। दे आर द फ्रूटलेस फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट, यानी थैलोफाइटा के जितने भी प्लांट्स होंगे उसमें फ्रूट नहीं होगा, उसमें फ्लावर्स नहीं होंगे, वह सीड नहीं होगा। और एग्जाम्पल इसका क्या हम ले सकते हैं, दैट इज एल्गी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन द थैलोफाइटा ग्रुप, थैलोफाइटा डिवीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी बॉडी, अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट। बॉडी में स्टेम, रूट और लीव्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। कोई वस्कुलर बंडल नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन इसमें नहीं होगा वेल डेवलप्ड तरीके से। दे आर एक्वाटिक, ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। थैलोफाइटा डिवीजन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन। और इनके जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रूटलेस होते हैं, फ्लावरलेस होते हैं एंड सीडलेस होते हैं। ओके, our next division is bryophyta. Bryophyta, that is the amphibians of the plants kingdom. Okay, amphibians, you know amphibians word, amphibians मतलब कि ऐसे plants जो पानी में और लैंड यानी वाटर और लैंड दोनों पे ही क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो these kind of plants is belonging to the डिवीजन ब्रायोफाइटा। ओके, इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है, प्लांट्स के एम्फीबियंस कहा जाता है। स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स प्रेजेंट होता है, बट रूट्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्योंकि ये पानी में होते हैं, पानी की सतह पे क्या करते हैं, तैरते होते हैं, तैरते रहते हैं इसमें। अब थोड़ा सा ये वेल डिफाइंड है, किससे, थैलोफाइटा से। आप देखेंगे वहाँ पे स्टेम, रूट और लीफ तीनों ही एब्सेंट था, बट इन ब्रायोफाइटा स्टेम्स प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है, बट रूट्स आर एब्सेंट। अगर रूट्स एब्सेंट हैं, देयर वेस्कुलर बंडल स्टार्ट टू डेवलप। ठीक, वेस्कुलर बंडल जो हैं क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। दे मोस्टली ग्रो इन द मार्शली एंड सैंडी एरियाज, या ज़्यादातर मार्शी एरिया और सैंडी एरिया में भी ये ग्रो कर सकते हैं। गैमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेट, मतलब इसमें दो तरह के जनरेशन होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। ठीक, तो ब्रायोफाइट्स में जो है स्पोरोफाइट्स के जो जनरेशन होता है, दैट मीन्स कि स्पोर्स से प्लांट्स बनना। क्योंकि इसमें कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, तो इसमें भी बॉडी पूरी तरीके से वेल डिफाइंड ना होने के कारण स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर्स से ही नए नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो दे आर फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉफ, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि इसमें लीव्स प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, तो यह अपना भोजन खुद बना सकते हैं। सो दे आर द ऑटोट्रॉफ ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज द टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये थोड़ा और डेवलप्ड है, किन से, ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा से और वेल डेवलप्ड है। जैसे जस्ट यू सी द हेयर, रूट प्रेजेंट, स्टेम प्रेजेंट, लीफ प्रेजेंट, इसमें तीनों चीज़ें यानी बॉडी के पार्ट्स जो हैं डिफरेंशिएट हैं, प्रेजेंट हैं। वेस्कुलर बंडल भी इसमें क्या है, डेवलप है फॉर द कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। अगर वेस्कुलर बंडल डेवलप्ड है, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप्ड है, तो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। Leaves usually have leaflets, spores are borne on the under surface of the leaf. Leaves इसमें यूज इसकी जो लीव्स होती है यूजली लीफलेट्स, मतलब इसमें जो लीफ होते हैं वो एकदम एक्यूरेट दिखाई नहीं देते, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। यू सी हियर लाइक फर्न, एग्जांपल इज फर्न। ठीक, स्पोर बॉर्न, स्पोर्स जो होते हैं वह लीफ के अंडर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन होता है, डोमिनेंट होता है, मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों होता है, लेकिन डोमिनेट क्या होता है, डोमिनेंट होता है स्पोरोफाइट, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन कम होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉफ, दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर सीडलेस, फ्रूटलेस एंड फ्लावरलेस। सो टेरिडोफाइटा में भी सीड नहीं मिलता है, फ्रूट नहीं होते हैं और फ्लावर्स नहीं होते हैं। क्लियर, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना भोजन ये खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल फर्न। नेक्स्ट इज द किंगडम फेंड्रोग्रेमी। फेंड्रोग्रेमी
Phanerogamy, the division is made up of plants that bear flower and seed and make up the majority larger plant. जो फेनरोग्रामी डिवीज़न है, इसमें प्लांट्स जो हैं वो सीड को बेयर करते हैं और सीड बेयर करते हैं, फ्लावर्स इसमें होते हैं और यह एक बहुत बड़ा प्लांट का ग्रुप बनाते हैं। द बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट। यहाँ से बॉडी जो प्लांट्स की होती है डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट होती है, किसमें? ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट में। प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सीड, और इसमें सीड के जरिए से ही प्लांट जो है प्रोपगेशन करता है। सीड आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पर सीड्स का जो फॉर्मेशन होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि इन द फेनरोग्रामी द प्लांट्स हैव द बोथ बाइसेक्सुअल, मीन्स कि सेक्स मेल और फीमेल गैमीट्स सेक्स सेल्स होते हैं जो फ्यूज करते हैं, फ्यूज टुगेदर इनसाइड द ओवरी, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड देन डेवलप इनटू द सीड। या फीमेल पार्ट्स के फ्लावर में मेल और फीमेल गैमीट सेक्स सेल्स जो है फ्यूज करते हैं ओवरी के अंदर और डेवलप करते हैं सीड। इन सम प्लांट द सीड आर नॉट प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि ओवरी के अंदर सीड नहीं प्रोड्यूस होता है। फेनरोग्रामी इज मेड इनटू द टू फर्दर डिवीजन, और इसके आधार पर ही फेनरोग्रामी को दो अलग डिवीजन पे डिवाइड किया गया, दैट इज द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड प्लांट्स, नेकेड सीड प्लांट मतलब कि उस सीड के ऊपर किसी प्रकार की कोई कवरिंग नहीं होगी। एंड एंजियोस्पर्म में सीड बॉन्ड विद द फ्रूट, और एंजियोस्पर्म में वह प्लांट्स आएंगे जिसमें जो सीड होंगे वह फ्रूट के अंदर होगा। ओके, so now we are going to discuss the next division, that is gymnosperm, that is belonging to subdivision of phanerogamy. Okay, so phanerogamy, the naked seed is the most characteristic features of the gymnosperm, means seed coatings are absent फ्रॉम द साइड, यानी कि सीड की जो कोटिंग होती है जिम्नोस्पर्म में वह एब्सेंट होता है, और सीड जो मोस्टली क्या होते हैं? नेकेड होते हैं। नेकेड मतलब कोई कवरिंग नहीं होता है। प्लांट्स जो होता है वो रूट, स्टेम, लीफ आर वेल डेवलप्ड होते हैं, इसमें वेस्कुलर बंडल भी वेल डेवलप्ड होता है। फ्रूट, फ्लावर एंड सीड का फॉर्मेशन भी होता है। मेल एंड फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं, और ये दे आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक प्लांट पर एक ही सेक्स होगा, चाहे वो मेल या फिर फीमेल। वुड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहाँ से जो प्लांट्स होते हैं उसमें वुड का फॉर्मेशन होने लगता है। एंड द एग्जाम्पल इज साइकस एंड पाइनस। ओके, ओके स्टूडेंट्स, I hope you will understand. The next division is angiosperm. It is the most advanced plant in the plant kingdom. ठीक है, सबसे एडवांस जो डिवीजन है दैट इज द एंजियोस्पर्म। इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे काफ़ी वेल डिफाइंड होंगे, बॉडी डिफरेंशिएट होगी, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, सीड के ऊपर कोटिंग होगी फ्रूट की, और प्लांट सेक्सुअल एंड प्लांट्स जो होते हैं वह बाइसेक्सुअल होंगे, मतलब कि यूनिसेक्सुअल, एक सेक्स फीमेल एंड फीमेल होगा। रूट, स्टेम, लीव्स आर वेल डेवलप्ड होंगे इसमें, और सीड की कोट अराउंड द सीड, यानी कि सीड के ऊपर फ्रूट की क्या होगी? कवरिंग होगी। एंजियोस्पर्म को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। चूंकि सीड क्या है? फ्रूट के अंदर है, तो इसके बेसिस पे एंजियोस्पर्म को भी दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, दैट इज मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स मतलब कि सिंगल। यू सी, वीट के जो सीड होते हैं वो सिंगल कॉटिलिडन्स के होते हैं। वहीं पे अगर आप मैंगोज, डाइकोटिलिडन्स मतलब टू सीड लीव्स, यानी बीन्स मतलब कोई भी बीन्स आप देखिए, जैसे आप ग्राम्स में देखिए चना, उसमें दो होते हैं, दैट इज द डाइकॉट। मोनोकॉट राइस हुआ, वीट हुआ, इसमें सिर्फ सिंगल दाने होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द seed coating, the cotyledons, the angiosperm is also subdivided into the monocotyledons and dicotyledons. Okay, what is monocotyledons? Plant in which seed cannot be divided into two equal half is called a monocotyledons. जितने भी ग्रेन्स होंगे, जैसे वीट, राइस, मेज, बार्ले, दीज आर द सिंगल कॉटिलिडन्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मोनोकॉटिलिडन्स। मतलब इसमें के जो सीड होंगे वह
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे. ओके. And dicotyledon, the seed which can divide into two equal half is called dicotyledons. और dicotyledons होंगे जो सीड होंगे दो अलग 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 हाफ में क्या होंगे डिवाइड होंगे. जैसे कि आपने पी देखा मटर, ग्राम देखा होगा, ग्राम्स में कुछ इस तरह से बना होता है, ऐसे निकल जाता है, यानी कि अगर हम इसके सीड को निकालते हैं तो ये ग्रो करने लगता है. दैट इज द डाइकोटिलेडन्स. मस्टर्ड इज ऑल्सो. सो this is the dicotyledons. Example of dicotyledons, that is the mango and peas. One other example of the that is on the basis of the plant. एक चीज और हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं, दैट इज द लीफ. यू सी द लीफ ऑफ द राइस. उसकी लीव्स जो होते हैं पैरेलल वेनेशन होता है. पैरेलल वेनेशन मतलब दिस टाइप. ठीक. यानी मोनोकॉटिलिडन्स की जो लीव्स होंगे उसमें किस प्रकार का वेनेशन होगा, दैट इज द पैरेलल, इस तरीके से. जबकि डाइकोटिलिडन्स के लीव्स आप देखेंगे, मैंगो के आप लीव्स देखेंगे तो उसमें क्या होगा, रेटिकुलेट, मीन्स कि इस तरीके से भी होगा, ऐसे भी होगा. दैट इज द रेटिकुलेट वेनेशन. So it is also a differentiate between the monocots and dicotyledons. So students, I hope you will understand this explanatory video. So you see here that is the two plants, dicotyledon plants, that is mustard, and monocotyledons, that is the maize. इसमें आप देखिए जो अभी मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द वेनेशन ऑफ द लीफ, यू सी हियर द लीफ ऑफ डाइकॉट, that is dicot leaf, and that is the monocot leaf. The leaf is the simply, मतलब इसको अगर हम टू हाफ में जब डिवाइड करेंगे तो ये एकदम सिंपल सीधे सीधे क्या होगा, कट फटेगा. लेकिन अगर हम इस डाइकॉट के लीव्स को लेकर लेंगे तो इसमें हम रेटिकुलेट वेनेशन पाएंगे और इसको किसी भी तरीके से हम इसको कट कर सकते हैं. यहाँ पर आपने देखिए क्या डिफरेंस हो सकते हैं मस्टर्ड के प्लांट्स में और मेज के प्लांट्स में. फीमेल फ्लोरेसेंस होता है एंड स्टेम होता है, फ्रूट होता है, एक्सिलरी बड्स होते हैं. जबकि इसमें क्या होता है, मोनोकॉटिलिडन्स में लीफ शीट होता है, लीफ होते हैं, फीमेल इनफ्लोरेसेंस होते हैं. सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स. में मोनोकॉटिलिडन्स मतलब सिंगल सीड होता है जिस जो कि दो हाफ में डिवाइड नहीं होता है. एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं दैट इज द मेज, व्हीट, राइस. एंड डाइकॉटिलिडन्स मतलब जो सीड है वो टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होता है और उसकी लीफ में कैसे वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, मैंगो, पीस एक्सेट्रा. Okay, students, I hope you will understand the plant kingdom. That is the easiest way to study this topic, that is plant kingdom. Okay, in the next video, I am explained animal kingdom. So revise it properly and learn it. Thank you.